میری آواز ہی پہچان ہے گر یاد رہے۔ یہ زبان سے نکلنے والی آواز جس نے لاکھوں سالوں کا سفر طے کیا، یہ کیسے وجود میں آئی؟ آج سے لاکھوں سال پہلے اشاروں کے ذریعے کمیونیکیشن کرنے والے انسان کو اس وقت خوشگوار جھٹکا لگا جب اس کی زبان سے ٹک کی آواز نے اور اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اپنے اس جسم کے اہم پرزے سے بہت بڑا کام لے سکتا ہے۔ اس انسان نے کیسے آواز کو زبانوں میں تبدیل کیا، پھر زبانوں نے کیسے ثقافتوں کو جنم دیا، زبانیں کیسے ختم ہوتی رہیں اور ان کی جگہ نئی زبانیں کیسے بنیں، اس وقت دنیا میں کتنی زبانیں خطرات سے دوچار ہیں، روزانہ کتنی زبانیں ختم ہو رہی ہیں۔ کیا خود بولنے والے اپنی زبان ختم کرتے ہیں یا اس کا اور بھی کوئی سبب ہوتا ہے؟ دنیا میں کون سی بڑی زبانیں ہیں، کون سی زبان کس زبان کو کھا رہی ہے، یہی آج کی ہماری اسٹوری ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر 40ویں دن بعد ایک زبان مر جاتی ہے۔ اس کے الفاظ، تاثرات اور معنی، تاریخ، تجربے اور ثقافت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ زبانوں کے ختم ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو طاقتور زبان کی طرف جھکاؤ، جبکہ دوسرا موسمیاتی تبدیلی ہے۔ طاقتور زبان کی طرف جھکاؤ کی بات تو آپ کو ضرور سمجھ آ رہی ہوگی، لیکن موسمیاتی تبدیلی کا زبانوں کے خاتمے سے کیا تعلق ہے، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے بات ہو جائے کہ دنیا میں اس وقت کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں 7000 زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان میں سے 43% زبانیں شدید خطرے سے دوچار ہیں، اور شدید خطرے سے دوچار زبانوں کی تعداد ہے 3078۔ یہ 3078 زبانیں لگ بھگ دنیا میں 9 کروڑ لوگوں کی زبانیں ہیں۔ جب یہ زبانیں خطرے سے دوچار ہیں تو صرف یہ زبانیں ہی نہیں بلکہ 3000 کلچر، 3000 پہچانیں بھی خطرے سے دوچار ہیں۔ زمین پر رہنے والے ہر انسان کے لیے اس کی زبان بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ دنیا کے ایسے کسی ملک میں ہوں جس کی زبان آپ کو نہ آتی ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ زبان ہی وہ واحد چیز ہے جس سے آپ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ اگر آپ مبلغ ہوں تو لوگ آپ کے خیال قبول کرتے ہیں اور آپ کے فالوورز بن جاتے ہیں۔ اس وقت خطرناک صورتحال یہ ہے کہ خطرے سے دوچار 3000 سے زیادہ زبانوں میں سے 2484 زبانیں یعنی 80% زبانیں صرف 25 ممالک میں مر رہی ہیں، جن میں سر فہرست انڈونیشیا میں 425 زبانیں، پاپوا نیو گنی میں 312 زبانیں، آسٹریلیا میں 190، USA میں 180 سے زیادہ زبانیں خطرے سے دوچار ہیں۔ ماہرین لسانیات بتاتے ہیں کہ مقامی زبانوں کے ختم ہونے کے کئی اسباب ہیں، جن میں خصوصاً سماجی اور معاشی معاملات بہت اہم ہیں، جبکہ باقی اہم معاملات ان دو اہم معاملات سے جڑے ہیں۔ زبانیں جب غائب ہوتی ہیں تو ان کی شناخت ہی غائب نہیں ہوتی بلکہ اجتماعی یادداشت بھی 1-2 نسلوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ان زبانوں میں لکھے ہوئے ریکارڈ کو جب پڑھنے والے ختم ہو جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کبھی زمین پر تھے ہی نہیں۔ ایک پورا علم، تکنیکی، سیاسی اور معاشی تجربات بھی گم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے بحران سے زبانوں کو تباہ کن نقصان ہوا ہے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو موجودہ صدی کے ختم ہونے تک آج بولی جانے والی 7000 زبانوں میں سے آدھی زبانیں ختم ہو جائیں گی۔ آج سے 100 سال پہلے تک یعنی 1920 کی دہائی تک آسٹریلیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن میں تمام مقامی زبانوں میں سے آدھی زبانیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس کا ایک بڑا سبب آب و ہوا کا بحران بتایا جاتا ہے۔ زبانوں کے خاتمے کا ایک بڑا سبب موسمیاتی تبدیلی بھی ہے۔ دنیا بھر میں چھوٹی سی لسانی کمیونٹیز ایک بڑی تعداد میں جزیروں یا ساحلوں کے آس پاس آباد ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح اور طوفانوں کی زد میں آتی رہتی ہیں۔ بارش اور درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں
माही गिरी और खेती बाड़ी को सख्त खतरात लाहक होते हैं। इन हालात की वजह से ये कम्युनिटीज़ एक जगह से दूसरी जगहों पर नकल मकानी करती रहती हैं। आदाद व शुमार के मुताबिक साल 2021 में 2,37,00,000 अफराद ने दुनिया भर में नकल मकानी की। नकल मकानी से लिसानी कम्युनिटीज़ टुकड़ों में तकसीम हो जाती हैं। नतीजे में इन छोटे छोटे लिसानी गिरोहों को अपने आसपास दूसरी बड़ी ज़ुबानों का सहारा लेना पड़ता है और एक दो नस्लों के बाद उनकी ज़ुबान ख़त्म हो जाती है। एक ज़ुबान उस वक्त ख़तरे में पड़ जाती है जब उसके इस्तेमाल करने वाली कम्युनिटी में बच्चों को ज़्यादातर वो ज़ुबान बोलना सिखाई जाती है जो उनके आसपास अक्सरियती आबादी बोलती है, जो सियासी और मार्केट की ज़ुबान होती है। ये कम्युनिटी समझती है कि उनके बच्चे अगर अपनी के बजाय वो ज़बान सीख जाएंगे तो उन्हें मुआशरे में ज़्यादा अहमियत मिलना शुरू होगी। उनके बच्चे इस मुआशरे में ज़्यादा घुल मिल सकेंगे और कारोबार के मौके ज़्यादा पैदा होंगे और इस तरह उनके बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी। माना कि माशी तौर पर ज़िंदा रहने के लिए इसके बगैर कोई चारा भी नहीं, लेकिन अगर इस कीमत पर अपनी ज़ुबान को ख़त्म कर दिया जाए तो ये ज़्यादा ही मौलिक होता है। लेकिन इस तरह की कम्युनिटीज़ के पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। इसका एक ही सबब है कि उनकी हुकूमतों की ज़ुबान को बचाना तरजीह नहीं होती। हर मुकामी ज़बान जब मरती है तो उसके साथ उसके बोलने वाले की सोच, सकाफ़त, रिवायत और उस ज़बान का इल्म भी खो जाता है। माहिरीन कहते हैं कि किसी ज़बान को गायब होने देना ऐसे ही है जैसे दौरान जंग किताबों को जला देना या म्यूज़ियम पर बमबारी कर देना। जब ऐसा होता है तो इंसानियत का एक अहम हिस्सा, उसकी तारीख और दुनिया को समझने का तरीका हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जदीद दौर में छोटी ज़बानें ताकतवर सकाफ़ती ज़ुबानों में ज़िम होने के नतीजे में ख़त्म हो रही हैं। एक गैर मुल्की ज़ुबान के हक़ में मकामी ज़ुबान को तर्क करना अब रवाज बन चुका है। यूरोपीय ममालिक की ज़ुबानों को भी इस रवैये की वजह से शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अंग्रेज़ी ज़ुबान तेज़ी से इन ज़ुबानों को चाटती जा रही है। यही सबब है कि बहुत से यूरोपीय ममालिक ने अपने ममालिक में मकामी ज़ुबानों को बचाने के लिए उन्हें सख्ती से राइज करने पर काम शुरू कर दिया है। इसी तरह अमरीकी ज़ुबानों को अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश या डच ज़बानों ने तब्दील करके रख दिया है। अब एक और सवाल कि दुनिया में जो ज़ुबानें ख़त्म हो गई थी, क्या उनमें कोई ऐसी ज़ुबानें भी हैं जिन्हें बाद में ज़िंदा किया गया हो? इसकी मिसालें तो कम ही हैं, लेकिन एक मिसाल है इब्रानी ज़बान की, जिसे सदियों बाद दोबारा ज़िंदा किया गया। दूसरी सदी ईस्वी में इब्रानी ज़ुबान बोलचाल की ज़ुबान के तौर पर ख़त्म हो गई थी और फिर 16 सदियों बाद 19वीं और 20वीं सदी में इसे जदीद शक्ल में ज़िंदा किया गया। इसी तरह 1970 की दिहाई में न्यूजीलैंड में ख़त्म होती मादरी ज़ुबानों को हालिया सालों में खातून वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने बहाल करने में अहम किरदार अदा किया। 7वीं सदी में जब अरबी ज़ुबान को उरूज हासिल हुआ तो मिस्र में बोली जाने वाली कप्ती ज़बान आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई, क्योंकि कप्ती ज़बान बोलने वालों ने अरबी को अख्तियार किया। ये ऐसे ही है जैसे आज अंग्रेज़ी। आने वाली सदी तक अंग्रेज़ी दुनिया की वो वाहिद ज़ुबान होगी जो सैकड़ों ज़बानों को खा चुकी होगी, क्योंकि इस ज़ुबान को आज भी दुनिया के बहुत सारे खित्तों में बावकार ज़ुबान का दर्जा दिया जाता है। दुनिया में अंग्रेज़ी समेत कौन सी बड़ी ज़ुबानें हैं, अब इस पर बात करते हैं। ये आदाद व शुमार काफ़ी दिलचस्प हैं। दुनिया में अगर 10 बड़ी ज़ुबानों का जिक्र किया जाए तो मालूम होता है कि चीनी बोलने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अंग्रेज़ी दुनिया की वाहिद ज़ुबान है जो दुनिया भर में राब्ते की ज़ुबान के तौर पर बोली जाती है और उसके बोलने वाले चीनी ज़बान से ज़्यादा हैं। लेकिन अंग्रेज़ी को मादरी ज़ुबान के तौर पर गिना जाए तो वो दर्जा बंदी में चीनी ज़बान से बहुत ही नीचे है। इस वक्त दुनिया में 1.5 अरब लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क चीन में 1 अरब 14 करोड़ लोग मैंड्रिन चीनी बोलते हैं। 38 करोड़ लोगों की मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी है,
60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, जबकि 34.5 करोड़ लोगों की मादरी जबान हिंदी है। 55 करोड़ 90 लाख लोग स्पेनिश बोलते हैं। 36 करोड़ से ज़्यादा लोग अरबी बोलते हैं, लेकिन 33 करोड़ लोगों की मादरी ज़ुबान अरबी है। दुनिया भर में 31 करोड़ लोग फ्रेंच बोलते हैं, 27 करोड़ 80 लाख लोग बंगाली बोलते हैं, जबकि 26 करोड़ 40 लाख लोग पुर्तगाली बोलते हैं। 25 करोड़ लोग रूसी बोलते हैं, जबकि 14 करोड़ 80 लाख रूसियों की ये मादरी ज़ुबान है। और 23 करोड़ लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन ये सब की मादरी ज़ुबान नहीं। उर्दू भारत में काफ़ी जगहों पर, बांग्लादेश में कुछ कम, लेकिन पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। ये पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है, जबकि पंजाबी 15.5 करोड़ और 12 करोड़ 30 लाख लोग जापानी बोलते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें।